کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا, کیا فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو, تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. او بندو, او مسلمانوں, او مومنوں, ایک بات یاد رکھنا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو, والدین کے ساتھ والدین کی خدمت کیا کرو, ماں باپ کی باتوں کو مانا کرو, ماں باپ کی باتوں کی عزت کیا کرو, ماں باپ کی عزت و احترام کیا کرو, ماں باپ کی باتوں کو مانا کرو. میرے بھائیوں, ماں باپ کو دیکھا کرو. اگر ماں باپ بیمار پڑ جاتے ہیں, اور نوجوانوں سنو, اگر ماں باپ بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو ضروری ہے کہ ہم ماں کی بیماری کو ٹھیک کریں, باپ کی بیماری کو ٹھیک کریں. میرے بھائیوں, اس طریقے سے, اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کچھ بھی بات کر رہے ہیں, اگر والدین کچھ بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ کام کرو تو کر لیجئے. اگر باپ کہتا ہے کہ یہ بیٹا یہ کام کرو, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, اگر کہتا ہے تو میرے بھائیوں اس طریقے سے ہمیں اور آپ کو ان کے باتوں کو ماننی پڑے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں, اور مسلمانوں سنو تو صحیح, اللہ کا فرمان پر غور کرو. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں, یعنی ماں باپ میں سے, اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے, اگر وہ بوڑھے ہو جائیں, اگر وہ بزرگ ہو جائیں, تو او لوگو فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, تو تم انہیں اف تک نہ کہو. اف کا ترجمہ, اف کا مفہوم آپ کو کس طرح سے بتائیں؟ ایک مثال کے طور پر آپ یوں لے لیجئے, آپ کچھ کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, آپ اپنا کام کر رہے ہیں, اور باپ یا ماں دونوں میں سے کوئی ایک دور سے, تھوڑا دور سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو. یعنی آپ تو کام اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن باپ ادھر سے کہہ دیے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا کر دو, تو آپ نے کیا کہا؟ کا مطلب کیا ہے؟ ابھی اگر نہیں کہتے تھوڑی دیر بعد کہتے تو. پانی تو لا کر دیا, لیکن اس نے کہہ دیا, یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی نہیں لانا چاہ رہا تھا, یعنی باپ کی باتوں کو ماننا نہیں چاہ رہا تھا. میرے بھائیوں, اف کہنا بھی حرام ہے, اف نہیں کہہ سکتے ہیں ماں باپ کو. اگر کوئی بھی بات کرنے کے لیے کہے تو ہمیں اور آپ کو کرنا ہے, اف نہیں کہنا ہے. اور ایک بات بتا دوں, آج کا نوجوان کیا کرتے ہیں؟ آج کا نوجوان کیا کرتے ہیں؟ اگر ماں باپ میں سے کوئی اگر کہتے ہیں کہ بیٹا وہاں مت جاؤ, تو کہتے ہیں کہ ہم جائیں یا نہ جائیں ہم جانتے ہیں, تم کیا جانتے ہو؟ میرے بھائیوں, یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے لیے کہنے کے لیے منع کر دیا ہے. غور کرو, ایک حدیث پر, ایک واقعہ پر آئیے. ایک نوجوان, او ماں باپ کو ستانے والوں مسلمانوں, آئیے ایک واقعہ پر غور کریں. ایک نوجوان اپنے ماں کو کندھے پہ لاد کر, ان کی ماں کہتی ہے بیٹا میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرا پیر کام نہیں کر رہا ہے, میرا ہاتھ کام نہیں کر رہا ہے, دانت نہیں ہے, میں صحیح سے چل نہیں پا رہی ہوں, بیٹا مجھے لے کر چلو, طواف کرنے کے لے کر چلو, مجھے طواف کرنی ہے. وہ نوجوان اپنے ماں کو کندھے پہ لاد لیا اور لے کر جاتا رہا, لے کر چلا گیا. میرے بھائیوں, وہ اپنے ماں کو وہ اپنے ماں کو طواف کرا رہے ہیں, طواف کرا رہے ہیں. ایک چکر لگاتے ہیں, دو چکر لگاتے ہیں, تین چکر لگاتے ہیں,
चक्कर लगाते लगाते मेरे भाइयों हजरत उमर फारूक से टकरा जाते हैं। वो अपने माँ को कंधे पे लाद करे, मेरे भाइयों वो अपने माँ को कंधे पे लाद करे। वो चक्कर लगाते लगाते तवाफ करते करते हजरत उमर फारूक से टकरा जाते हैं। मेरे भाइयों गौर करो, टकराने के बाद कहता है अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, तुम इस उम्र में तुम अपने माँ को कंधे पे लाद कर तवाफ कर रहे हो। कामिन कामिरुल मोमिनीन मुझे एक बात बताइए। कहा क्या? कहते हैं क्या अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, पैर है चल नहीं पा रही है, दांत है खा नहीं पा रही है, कुछ चिबा नहीं पा रही है, हाथ हाथों से लूली है, हाथ से काम नहीं कर पा रही है। अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है, ये बिस्तर पर पैखाना करती है, ये बिस्तर पर पेशाब करती है, मैं साफ करता हूँ, दांतों से कुछ चिबाने की ताकत नहीं रखती है, मैं अपने दांतों से चिबाता हूँ, फिर उसको मैं देता हूँ, वो फिर खाती है। अमीरुल मोमिनीन ये मेरी माँ है। अमीरुल मोमिनीन मेरी माँ ने मुझे ये कहा कि बेटा मुझे तवाफ करने के लेकर चलो, तो मैं तवाफ करने के लिए लेकर आया। मेरे भाइयों सुनिए, आप अमीरुल मोमिनीन को सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? अमीरुल मोमिनीन सब कुछ हम करते हैं, माँ की खिदमत करते हैं, माँ की बातों को मानते हैं, सब कुछ करते हैं। अमीरुल मोमिनीन क्या मैं अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या मैं अपना माँ का हक अदा नहीं किया? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि नहीं, तुम अपने अभी तक माँ का हक अदा नहीं किया हो। वजह क्या है? जब तुझे तुम्हारी माँ जन्म रही थी, जब तुझे तुम्हारी माँ पैदा कर रही थी, जब तुझे तुम्हारी माँ जन रही थी, उस वक्त जो दर्द हो रहा था, उस वक्त जो तकलीफ हो रही थी, उस तकलीफ में जो एक चीख, एक आवाज माँ के मुंह से निकलती है, वो उस आह का भी तूने हक अदा नहीं किया है। अभी तुम अपने माँ के हक के बारे में पूछते हो, अपने माँ के हक के बारे में सवाल करते हो। तुम तो अपने माँ का आह का भी हक अदा नहीं किए हो। नौजवानों इस वाक़या पर कुर्बान हो जाओ। उसकी माँ पैखाना करती है बिस्तर पर, उसकी माँ पेशाब करती है बिस्तर पर, उसकी माँ यहाँ तक कह दी बेटा मुझे लेकर चलो तवाफ करने के लिए, वो लेकर जाता है। मेरे भाइयों इतना काम करने के बावजूद वो अपने माँ का हक अदा नहीं कर पाया है, नहीं कर पाता है पूरा का पूरा। मेरे भाइयों आज हम और आप तो अपने माँ बाप की बातों को नहीं मानते हैं, माँ बाप के नाफरमानी में लगे रहते हैं, माँ बाप अगर कुछ करने के लिए कहते हैं तो नहीं करते हैं। मेरे भाइयों हमारा और आपका अंजाम क्या होगा? जरा सोचें, जरा गौर करें मेरे भाइयों। एक वाकया और मिसाल आपको दे दूं, एक वाकया और आप ले लीजिए। वाकया क्या है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल के घर जा रहे हैं, गए लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो अपने घर में नहीं थे। कहाँ थे? मेरे भाइयों इस वाक़या पर गौर करो, अल्लाह इस वाक़या पर गौर करो। क्या कहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के घर जा रहे हैं, लेकिन बेटे के घर जा रहे हैं उनको पता नहीं कि उनकी बीवी को पता नहीं है कि ये इस्माइल का बाप है। उसका बाप जा रहे हैं और जाने के बाद कहते हैं कि ए बेटी इस्माइल कहाँ है? वो कहती है कि इस्माइल वो शिकार करने के लिए गए हैं। कहाँ? हाँ वो शिकार करने के लिए गए हैं, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनको पूछते हैं क्या घर का गुजर बसर सही चल रहा है? वो कहती है कि हाँ गुजर बसर नहीं चल रही सही से, सुबह खाता हूँ तो शाम को नहीं, शाम को खाता हूँ तो सुबह नहीं, इस तरीके से कहती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी एक बात कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, आपके घर एक बूढ़ा आदमी आया था और आने के बाद ये कह रहा था, क्या कह रहा था? आने के बाद ये कह रहा था कि
सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है। तुम अपने शौहर को चौखट बदल देने के लिए कहा ना। चौखट से मुराद कौन है? चौखट किसे कहते हैं? चौखट से मुराद वही बीवी है। मेरे भाइयों, इस्माइल अलैहिस्सलाम घर आते हैं और आने के बाद उनकी बीवी उनको कहती है कि उनकी बीवी उनको कहती है कि एक बूढ़ा आदमी आया था और आने के बाद ये कह रहा था कि ऐ औरत, इस्माइल कहाँ गया है? मैंने कह दिया कि वो शिकार करने के लिए गए हैं। फिर वो कहते हैं, बूढ़ा आदमी ने कहा कि उनको कहना है कि घर का चौखट ठीक नहीं है, बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कह दिया, ऐ मेरी बीवी, तुमने मेरे बाप को क्या कह दिया कि तुमको तलाक देने के लिए मेरे बाप कह रहे हैं? तुमने क्या कहा है? उसकी बीवी कहती है कि मुझे पूछा कि घर का गुजर बसर कैसा चल रहा है। मेरी बीवी, तुमने अल्लाह की नाशुक्री की है, जिसकी वजह से मेरे बाप मुझे तलाक देने के लिए कहा है। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके बाप ने एक मर्तबा कहा कि तुम्हारी बीवी ठीक नहीं है, अल्लाह की नाशुक्री करता है, तुम उनको तलाक दे दो। वो तलाक दे देते हैं। मेरे भाइयों, वक्त हो चुका है। आखिर में आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि अपने माँ बाप की खिदमत क्या करें, अपने माँ बाप की बातों को माना करें, अपने माँ बाप की बातों को समझा करें। आप अपने माँ बाप की खिदमत क्या करें, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक क्या करें। अगर माँ बाप कुछ काम करने के लिए कह रहे हैं तो अपने माँ बाप की बातों को माने और माँ बाप वो काम करें मेरे भाइयों। वरना मेरे भाइयों, अगर माँ बाप राज़ी नहीं है आपसे, अगर अपने औलाद से, अगर कोई नौजवानों से अगर माँ अगर बाप अगर राजी नहीं है तो अल्लाह भी राजी नहीं है। मेरे भाइयों, अगर माँ बाप राजी हैं तो अल्लाह राजी